We will discuss basics of logical reasoning, like what is logical reasoning, how to score a good marks in logical reasoning, and all. ठीक है? ओके सो गाइस ये क्लास भी लेंगी थोड़ी आप बता दो। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। पहले तो देखो, तुम में से कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 11th में और लाइक ड्रॉप लेंगे, ठीक है? तो तीनों बच्चों को देखते हुए मैंने ये क्लास डिज़ाइन करी है। पहले हम बेसिक के बारे में समझेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग आखिर होता क्या है। देन वील मूव इट सिलेबस कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। फिर मैं इसका एक बेसिक टॉपिक समझाऊंगी आज, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ये टॉपिक हम समझ लेंगे, देन लास्ट में हम उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन है वो रहेगा। Ria, you should also explain it in English because one of the students doesn't understand Hindi. Oh, okay, get it. Okay, I think we can start now. Okay, guys, so let's start. So first, let's understand why is this session so important. So firstly, I'll teach you about the syllabus. What is the syllabus which you have to cover for CLAT 2026 in logical reasoning. Then हम उसका एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. What is an argument, what are its different types, and then we will solve questions which are based on the current pattern of CLAT. And some of the questions are taken from previous year questions of CLAT and ALET as well. तो दोनों के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, राइट? तो एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आपका कोई भी डाउट होगा, पहले आई विल एक्सप्लेन वन स्लाइड एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट. ओके. Okay, let's start. Introduction to legal reasoning. Sorry, legal nahi, logical reasoning. LR. So logical reasoning is a very important section जिसमें कि आपकी you know logical skills को test करते हैं, your critical thinking skills, your problem solving skills. Please mute your mic. Thank you. हाँ. So इस section में we test your analytical ability, critical thinking, problem solving. So it's a very important section. तो अब देख लेते हैं कि पेपर में इसका कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं. सो टाइप इज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू. देयर विल बी अ पैसेज एंड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन दैट. Roughly there are 20 to 26 questions. Total marks will be 20 to 26, depends on question. And weightage is around 20% of the paper. For correct answer, you will get 1 marks, and for incorrect answer, there will be a negative marking of 0.25. Okay. Let's now look at the syllabus of CLAT 2026. ये सारा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी आज. बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है लॉजिकल रीजनिंग की. तो पहले आप बस पढ़ देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है. मैं पूरा डिटेल में हर क्लासेस में ये जो भी सिलेबस है पूरा कवर करवा दूंगी. So there are different type of questions like assumption based, strength and weaken, logical flaw, parallel reasoning. इतने सारे questions होते हैं. वो काफ़ी heavy words हैं but काफ़ी easy होते हैं अगर हम इनका concept समझ ले तो. Okay, so आज का concept समझते हैं which is an argument. What is an argument? What is the structure of an argument? So before starting, does anyone know what is an argument? पता है किसी को argument होता क्या है? If you know, you can write in chat box. Please guys respond. You can write it in chat box. If anyone know what is an argument, please type the definition. If you don't know, you can type no. But please respond. Quickly. Okay, argument is a statement. Okay. Guys respond please. जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं आगे बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें समझ नहीं आने वाली. पहले आप रिस्पॉन्ड करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. स्टेटमेंट कंटेन क्लेम टू बी ट्रू विद एविडेंस. क्लोज. ओके श्रेया.
statement containing premise and conclusion. Wow, Delisha. Like it is the best answer given by Delisha. You can read it. It is a statement which contains premise and conclusion. Okay, guys. Okay. ठीक है, कुछ लोगों के आंसर काफी क्लोज है, कुछ के थोड़े से भटके हुए आंसर्स है, पर कोई बात नहीं, अभी हम समझ लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस हो सकता है या उसके एक से ज्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रेमिस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज अ प्रेमिस। डज एनीबडी नो व्हाट इज अ प्रेमिस? पता है, कुछ आइडिया है प्रेमिस क्या होता है? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, फैक्ट, फैक्ट, ओके, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि प्रेमिस इज अ फैक्ट। बेसिकली हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड कि इट इज अ फैक्ट, जिसमें मतलब कोई भी एक सेंटेंस जिसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, कोई फैक्ट होता है, कुछ भी डेटा दिया हुआ है आपको, कुछ भी स्टैट्स दी हुआ है, इट इज अ प्रेमिस। एंड व्हाट इज अ कंक्लूजन? व्हाट इज अ कंक्लूजन? The main point where premise ends. Okay, okay. Close. So premise is what we deduce, sorry, conclusion is what we deduce from the given premises. कि जो भी premise हमें दिया हुआ है, हम उससे क्या deduce कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, that is conclusion. So argument contains premise plus conclusion gives you argument. दिस इज लाइक सिंपल फॉर्मूला, प्रेमिस प्लस कंक्लूजन गिव यू आर्ग्यूमेंट। अगर एक भी चीज़ इनमें से मिसिंग होती है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन इज 140 करोड़, सो इज इट एन आर्ग्यूमेंट? कैन वी से दैट इट इज एन आर्ग्यूमेंट? क्विकली टेल इन चैट बॉक्स। नो, ओके, नो, नो, व्हाई? Why this sentence is not an argument? No, Jaya, argument and assumption are different thing. ओके, तो आपने काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि इसमें खाली फैक्ट दिया हुआ है, इससे हम कुछ लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे। इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ 140 करोड़, इसमें वी कैन नॉट डिड्यूस एनीथिंग। अब नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन इज़ 140 करोड़, देयरफॉर इट इज़ हेविली कंजेस्टेड कंट्री। ये तो आ गया आपका प्रेमिस कि फैक्ट दे दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि इस वजह से जो इंडिया है इट इज़ अ हेविली कंजेस्टेड कंट्री, कि बहुत ज़्यादा भीड़ है उस कंट्री में। सो दिस इज़ योर प्रेमिस, दिस इज़ योर कंक्लूजन, एंड दोनों को मिला करके बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। इतना समझ आया आप लोगों को? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? बेसिकली आर्ग्यूमेंट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्रेमिस, कंक्लूजन और आपका असम्पशन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ प्रेमिस। सो प्रेमिस इज अ स्टेटमेंट or fact which is used to support the argument. It contains evidence, reason, observations, any statistics, any fact, any information. तो यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इट इज़ अ प्रेमिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रेमिस 1, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, सिंपल फैक्ट है। प्रेमिस 2, whales आर मैमल्स, इट इज़ ऑल्सो एन फैक्ट, राइट? तो प्रेमिस होता है कि अगर आपको कोई भी फैक्ट दिया हुआ है, कोई कोई रीज़न दिया हुआ है, कोई आपको स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपका प्रेमिस हो जाएगा। नाउ अब आते हैं व्हाट इज़ अ कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन इज द मेन क्लेम और द स्टेटमेंट दैट फॉलोज द प्रेमिस, यानी कि प्रेमिस वो सॉरी कंक्लूजन वही होता है कि अगर जो चीज़ हम डिड्यूस कर पा रहे हैं एक प्रेमिस से, हमने दोनों ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये पढ़े, अब इससे हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं दैट इज़ योर कंक्लूजन। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है देयरफॉर व्हेल्स आर वार्म ब्लडेड। अब देखते हैं कि जैसे प्रेमिस में दिया हुआ है कि दीपक, please don't create such chaos in the class, otherwise, I'll remove you. Guys, can you see the screen? Okay. ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर दोबारा से, I'll repeat again. Premise is your statement, your fact, your observation, and information. Conclusion is what the result of premise, right? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड वेल्स आर मैमल्स, तो इससे हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं कि वेल्स आर वार्म ब्लडेड, राइट। नेक्स्ट आता है assumption. Now, assumption is an unstated premise which is necessary for an argument to be valid. यानी कि assumption जो होती है वो stated नहीं होगी कभी भी, नाम में ही दिया हुआ है कि आपको अज्यूम करनी पड़ेगी वो चीज, वो लिखी नहीं होगी पर हमें उसको पहले से ही करेक्ट मान के चलना है, दैट इज योर assumption, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। Now your premise is a person who studies regularly scores well in exam. अगर कोई बच्चा है वो रोज पढ़ेगा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएगा, दिस इज योर फैक्ट, दिस इज अ प्रेमिस। अब आता है कंक्लूजन, राहुल विल स्कोर वेल इन एग्जाम, राहुल अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, तो व्हाट वी कैन एज्यूम कि राहुल जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है, और कौन अच्छा स्कोर करता है, जो रोज पढ़ता है, यानी कि राहुल जो है वो रोज पढ़ता है, दिस इज योर assumption। ये स्टेटेड नहीं होगी पर ये हमको मान के चलना है कि यार राहुल ने एग्जाम में अच्छा स्कोर करा है और वो लोग अच्छा स्कोर करते हैं जो एग्जाम में मतलब जो रोज पढ़ते हैं, तो यानी कि राहुल रोज पढ़ता है। इतना रिया रिया क्लियर हुआ? रिया हाँ। एक बार फिर से स्क्रीन शेयर को ऑफ करके ऑन कर दे, बिकॉज स्क्रीन पिन नहीं हुई है, स्टूडेंट लिख रहे हैं कि पिन कर दो स्क्रीन को। ओके वेट अ मिनट, मैं दोबारा कर देती हूँ। हाँ Just wait 2 minutes. Okay. विजिबल है अब स्क्रीन? या अब सही है। ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी इतना समझ आया, assumption, premise, conclusion, argument, आया समझ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं फिर। How to differentiate between a premise and a fact? Both are same. Katyayani, both are same. A premise is a fact. Any information, any fact, any reason, evidence, it is a premise. Both are same. ठीक है, तो in a nutshell we can conclude that some information and a conclusion and little bit of assumption leads to an argument, right? A piece of information leads to a conclusion. Now, अब आप लोग मुझे बताओ, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, पहला हिस्सा इसका ये है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ टेल मी कौन सा प्रेमिस है और कौन सा कंक्लूजन है इन द चैट बॉक्स क्विकली। Which one is premise and which one is conclusion? Mm-hmm.
राइट, तो मोस्टली सबने करेक्ट आंसर ही दिया है. ए इज प्रेमिस एंड बी इज योर कंक्लूजन. इट इज फ्राइडे. फ्राइडे है. इट इज फैक्ट. सो फैक्ट है तो प्रेमिस हो गया. सो द एम्प्लॉयज डू नॉट वर्क. फ्राइडे है तो एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे. इट इज योर कंक्लूजन. तो ये हो गया आपका पूरा आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. अब आता है हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रेमिस. ढूंढते कैसे हैं प्रेमिस को. So there are some words which indicate where your premise is located. These words are because, since, given that, so, as, due. These are the words which indicate that there is a premise present. Mostly these indicate, but sometimes कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ये words किसी और चीज़ को denote कर रहे होते हैं. But most of the time they will indicate a premise. Same with conclusion. There are words which indicate where is your conclusion located. These words are thus, therefore, in conclusion, clearly, for this reason. So ये सारे words आपके conclusion को show करते हैं. यानी कि in short your reasoning is your premise जो कि answer करती है why and how को, and the result is conclusion. It is your formula. Premise plus conclusion gives you an argument. आया इतना समझ सबको. किसी को कोई डाउट. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट. अब आप चार्ट्स में लिख के बताओ, डेफिनेशन लिख के बताओ व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट. लेट्स सी कितना समझ आया आप लोगों को. क्विकली. राइट. ओके, तो यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट समझ आ गया. मोस्टली बच्चों को ये होता है कि वो तैयारी करते रहते हैं क्लैट की, पर उन्हें यही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट. लास्ट तक भी आप उनसे जाके पूछोगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता. तो हमें ऐसा नहीं करना है. पूरा अगर आपको बेसिक पता होगा, थ्योरी पता होगी, तो आप लॉजिकल रीजनिंग बड़े आराम से कर लोगे. सबको यही डर लगता है कि यार लॉजिकल रीजनिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें मार्क्स नहीं आते, समझ नहीं आता कुछ. लेकिन आपको पहले थ्योरी पे काम करने की ज़रूरत है. अगर आपको वो थ्योरी समझ आ गई ना तो क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से हो जाएंगे. ओके, ठीक है. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अब. ओके, सो हियर आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मैं आपको 50 सेकेंड्स का टाइम दूंगी. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले आप रीड कर लेना पूरा क्वेश्चन, ऑप्शंस रीड कर लेना, देन यू विल आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. क्वेश्चन वेरी इजी. ओके, ए ओके, सो सबका करेक्ट आंसर है. द करेक्ट आंसर इज ए. डेफिनेटली सबका करेक्ट आया. 100% एक्यूरेसी, यानी कि सबको समझ आ गया है. एक बार फिर भी मैं समझा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा. First is the global economy is in doldrums. This is your first statement. Therefore, Russia and Ukraine must end their war. This is your second statement. Now, अभी मैंने आपको बताया था that there are words which indicate where your conclusion is located. Now, see this word, therefore. तो यहीं से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि यार ये वाला जो सेंटेंस है therefore से स्टार्ट हो रहा है, तो it might be a conclusion, right? दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं.
द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स. फैक्ट है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही. अब अच्छी नहीं चल रही, उससे क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उससे क्या होना चाहिए, तो रशिया और यूक्रेन को अपना जो वॉर है वो एंड कर देना चाहिए. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so most of you are giving A. A. Correct. So the correct answer is A. सबका करेक्ट है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं. Television has a harmful effect on school going children. Okay. This can be seen from the poor school performance of children who watch many hours of television. Children who watch more than 4 hours of TV scored 30% less in all subjects than children who did not watch TV. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं ये लाइन हटा दूँ, ये वाली, तो इन जो बची हुई लाइन है इससे आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो, कुछ का ये कंक्लूजन है? नो. नो. यस. क्यों? क्योंकि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फैक्ट दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बच्चे टीवी देखते हैं उनके स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आते. आपको ये डेटा दिया हुआ है कि जो 4 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं वो 30% लेस स्कोर करते हैं. ये आपका जो कंक्लूजन है ये यहाँ दिया हुआ है कि टेलीविजन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. ये आपका कंक्लूजन है, इससे हम ये रिजल्ट निकाल पा रहे हैं. तो इट इज़ योर कंक्लूजन. सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. बी सी. ओके. सी. ओके. अच्छा, जो भी बच्चे ये सी आंसर दे रहे हैं मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्या अच्छे से? क्योंकि द करेक्ट आंसर इज बी. समझते हैं ऐसा क्यों है. Most planets in the solar system cannot sustain life. First sentence. This is because the surface temperature of most planets are either too high or too low. Second sentence. And there is no water to sustain life. Surface temperature of most planets are either too high or too low. Premise. Fact दिया हुआ है. And there is no water to sustain life. ये भी फैक्ट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है दोनों. तो यानी कि 2 और 3 तो हमारे प्रेमिस हो गए.
अब देखते हैं 1 को. Most planets in the solar system cannot sustain life. Why? Why? Because their surface temperature is either too high or too low and they have no water. तो इससे मुझे y का आंसर मिल रहा है. तो इट इज़ योर प्रेमिस. लेकिन हम इन दोनों प्रेमिस का यूज़ करके क्या हम इस रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं? यस. क्योंकि अगर हम ये देखें कि या तो प्लैनेट्स पे जो टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पे कोई पानी भी नहीं है. इससे क्या हो रहा है? इससे हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं? इसकी वजह से कि और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते. इससे मैं ये कंक्लूड कर पा रही हूँ इन दोनों सेंटेंस से. यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स. आया समझ? क्या मैं ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो प्रेमिस दिया हुआ है इनका यूज़ करके मैं क्या फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कंक्लूड कर पा रही हूँ? तो आपका फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इट विल बिकम योर कंक्लूजन एंड सेकेंड एंड थर्ड विल बिकम योर प्रेमिस. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट Excuse me, क्वेश्चन. ma'am. हाँ. Ma'am, in the previous question, wasn't the first line or the first sentence more like a statement, like a fact? नो इट इज़ नॉट अ फैक्ट. क्योंकि आप बाकी उनसे रिलेट करके देखो बाकी जो आपको प्रेमिस दी हुई हैं. सेकंड में ये लिखा हुआ है कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है या इतना कम है और उनके पास पानी भी नहीं है. ठीक है. अब इससे क्या हो रहा है? इनसे इस ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से उन पे जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा क्योंकि इन दो सेंटेंस से हम ये चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं. सिचुएशन के हिसाब से देखिए बाकी दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं तो इट विल बी योर कंक्लूजन कि जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है और देर इज़ नो वाटर टू सस्टेन लाइफ. क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, mostly people are saying D. Some of you are saying B. Deepak, don't spam your answers, please. Okay, Fatima said A. Okay, now let's look at the correct answer. D. All are premises. Let's look at the question. Perfume is a mixture of alcohol and fragrant essential oils. Animal substances such as musk, ambrosius, and civet were first added as fixatives in Middle Ages. Since the 19th century, chemists have produced thousands of synthetic essential oils, some imitating natural products and others yielding new scents. Most perfumes today are a blend of natural and synthetic scents and of fixatives that add pungency. अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए.
Perfume is a mixture of alcohol and fragrant essential oils. फैक्ट है, ये तो पूरा फैक्ट दिया हुआ है कि परफ्यूम में अल्कोहल और एसेंशियल ऑयल्स मिले होते हैं विच मेक्स अ परफ्यूम, राइट? तो ये तो फैक्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इट इज़ योर प्रेमिस. नेक्स्ट, बी, सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी. अब देखो यहाँ आ रहा है सिंस, यानी कि कंक्लूजन होना चाहिए था, पर ये जो सिंस है ये कंक्लूजन की तरह यूज़ नहीं हुआ है. ये सिंस यूज़ हुआ है टाइम को डिनोट करने के लिए, 19th सेंचुरी को डिनोट करने के लिए. तो अगर जब भी तुम लोग ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करने जाने वाले हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना और एक बार सेंटेंस पूरा पढ़ लेना. ये नहीं कि सिंस देखा और ऑप्शन मार्क कर दिया, इतनी जल्दी भी नहीं करना, फिर आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. आयुष प्लीज़ टर्न ऑफ योर वीडियो. थैंक यू. ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें मोस्टली लोगों ने गलत आंसर दिया है. तो सिंस जो ये वाला यूज़ हुआ है, इट इज़ फॉर टाइम नॉट फॉर कंक्लूजन. अब दोबारा से ये स्टेटमेंट रीड करते हैं. सिंस द अर्ली 19th century, chemists have produced thousands of synthetic essential oil. फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 19th सेंचुरी से ही जो केमिस्ट हैं उन्होंने सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल बनाने स्टार्ट करा है. तो इट विल बिकम योर प्रेमिस. अब दो चीज़ें तो प्रेमिस हो गई है, तो यानी कि डी हो सकता है. अगर मैं सी को ना पढूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी सी ऑप्शन देख लेते हैं. मोस्ट परफ्यूम्स टुडे are a blend of natural and synthetic scents and of fixatives that add pungency. फैक्ट दिया हुआ है ये भी कि जो आजकल के परफ्यूम्स हैं उसमें एक तो या तो नेचुरल सेंस होती है एंड सिंथेटिक, दोनों का ब्लेंड होता है. तो इट इज़ ऑल्सो योर प्रेमिस, यानी कि ए, बी एंड सी बोथ आर प्रेमिस. सो योर करेक्ट आंसर इज डी. आया समझ Okay, आपको? okay, Ria. One of the students, Samsul named, he हम्म. had चैट बॉक्स में आप चेक करो, इसने कुछ लिखा है हम्म. आपको. I see my answer, everyone. And any argument, premise, or the statement that provide foundation for reaching conclusion. Absolutely correct. In this case, all the given statements contribute to explaining the composition and evolution of perfumes, leading to the conclusion that modern perfumes are a blend of natural and synthetic scents. हाँ, तो उसमें क्या है? There is no conclusion in this. ये पूरा argument नहीं है. This is incomplete argument. There is no conclusion. They all are premise. A, B, C both are premise. Right? आया समझ? कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? बस एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम वर्ड से प्रेमिस पहचानोगे तो पूरा सेंटेंस पढ़ना अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ऐसी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, और फिर हमारा जो एक मार्क्स आना होता है वो भी कट जाता है, राइट? अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, एंड दिस इज़ फ्रॉम एले 2022. तो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, बाकी तो एक दो मैंने बनाए थे, लेकिन दिस वन इज़ फ्रॉम एले 2022. तो एलेट इज़ कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट देन क्लैट, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है. तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन.
group you are saying B. C, B, B, B. Okay guys, so the correct answer is C. Okay, Samsel gave the correct answer. अब समझते हैं कि ये मोस्टली लोगों का गलत क्यों हुआ. Okay, so the best telecom services in the world are to be found in South Korea and Japan, and neither country इस वाली लाइन पे काफी गौर देना. Neither country allocates spectrum on the basis of auction. मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ इस वाले सेंटेंस की कि जो बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज हैं पूरी दुनिया में दे आर फाउंड इन साउथ कोरिया एंड जापान, और दोनों में से कोई भी कंट्री जो है स्पेक्ट्रम के बेसिस वो जो ऑक्शन के बेसिस पे स्पेक्ट्रम अलोकेट नहीं करती. ठीक है, नाइदर कंट्री अलोकेट स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन. Spectrum is assigned on the basis of discretion, the focus being in ensuring the availability of cutting-edge telecom services and revenue the super-enabled industry would generate, rather than on generating revenue from spectrum auctions. यानी कि जस्ट मैं बता देती हूँ कि जो साउथ कोरिया एंड जापान है दे हैव द बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज एंड नाइदर कंट्री एलोकेट स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन. वो लोग ऑक्शन के बेसिस पर नहीं करते, डिस्क्रिशन के बेस पे स्पेक्ट्रम जो है वो अलाउ करते हैं. Neither Japanese nor the Korean are squeamish about eating almost everything that creeps, crawls, swims, flies or runs, but when it comes to geese that lay golden eggs, they apparently lay off. लास्ट वाली लाइन अगर नहीं पढ़ते तो भी चल जाता क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है ऑप्शन में. तो कुछ चीज़ें पैसेज की ऐसी होंगी जिसपे तुम्हें काफ़ी फोकस करना है. कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन जैसे ये दी हुई है जो काम की नहीं है, अगर तुम उसको नहीं पढ़ते हो तो वो भी चलता है क्योंकि इसमें उसका कुछ काम नहीं है. अब हम देखते हैं ऑप्शंस. Geese are not consumed as food in Japanese and South Korean culture. Geese की तो पर इसमें हम लोग बात ही नहीं कर रहे. We are talking about telecom services and spectrum. तो ये तो आपका होगा ही नहीं. बी, मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया था. Auctioning telecom spectrum would generate a great deal of revenue for the Japanese and South Korea. पर एक बात बताओ, लाइन की स्टार्टिंग में ही बोला है कि बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज आर प्रेजेंट इन साउथ कोरिया एंड जापान एंड नाइदर कंट्री एलोकेट स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन. यानी कि वो ऑक्शन का यूज ही नहीं करते. तो फिर ऑक्शनिंग से रेवेन्यू ज़्यादा कैसे जनरेट हो जाएगा? ये तो सबसे इनवैलिड आंसर जो है वो बी है. वो तो हो ही नहीं सकता. ये तो हमारे मेन जो आइडिया उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो बी इज नॉट योर करेक्ट आंसर. अब आते हैं सी और डी. गवर्नमेंट दैट विश टू प्रोवाइड गुड टेलीकॉम सर्विस शुड नॉट ऑक्शन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम. सेम चीज जो इसमें फर्स्ट लाइन में दी हुई है वही सेम चीज इसमें बताई हुई है. डी, governments that wish to provide good telecom services should auction telecom spectrum. वही पहली चीज को ही हमारी जो ये लाइन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो हमारा डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज सी. एक और ट्रिक मैं बता देती हूँ. अगर तुम सी और डी ऑप्शन को देखो तो बस दोनों में एक वर्ड का अंतर है, वो है नॉट. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट है. तो जब भी ऑपोजिट स्टेटमेंट दिए होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में तो उन दोनों में से कोई करेक्ट होता है. बाकी जो आपके दो ऑप्शन दिए होंगे वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि या तो आंसर आपका यस होगा या नो होगा. बीच में तो कुछ और हो नहीं सकता. या तो कोई चीज़ सही होगी या गलत होगी. राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ एक सही भी है और गलत भी है. लॉजिकल रीजनिंग में तो ऐसा नहीं होगा. तो इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक कि जब भी आपको ऐसे दो ऑप्शंस दिए हुए हों पैसेज में तो उन दोनों में से ही कोई आंसर होता है. इस केस में सी इज योर राइट आंसर. ये आया समझ सबको? बिकॉज दिस इज एन इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन तो ये समझ आना काफ़ी ज़रूरी है. इसमें किसी को कोई डाउट?
ओके गाइस, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का. किसी को कोई डाउट, आर्ग्यूमेंट समझ आया, उसके टाइप समझ आए, कुछ भी डाउट, कुछ भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? Guys, you are free to ask any doubt regarding anything. Okay, so आप लोग कोई भी डाउट पूछ लो. So at last मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, जिसकी पीडीएफ और आपको शेड्यूल ऑलरेडी मिल चुकी होंगी. So आप लोग में से कौन कौन पर्सनल मेंटरशिप sees this year? No, she topper. She gave the exam last year. Yeah, I didn't understand the proper reasoning behind the last. Okay, Ria. मैं दोबारा समझा देती हूँ. कात्यायनी, कैन यू अनम्यूट योर माइक? तो ज़्यादा समझ अच्छे से आई कैन एक्सप्लेन, अगर मुझे पता होगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई. हेलो. यस कात्यायनी, क्या समझ नहीं आया इसमें आपको? बस मुझे द रीजन बिहाइंड दिस, like what is the premises, मुझे समझ नहीं आया कि what is the reason behind this. अच्छा, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज ट्रू एज पर द पैसेज, यानी कि हमें पैसेज रीड करना है, बताना है कि क्या जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट, उनमें से कौन सा ट्रू होगा. पहला ये दिया. अब जो पैसेज हमने पढ़ा था इसमें दिया हुआ है स्पेक्ट्रम के बारे में कि जो साउथ कोरिया एंड जापान है, दे हैव द बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज. क्यों बेस्ट, क्यों है? क्योंकि कोई भी जो कंट्री है, वो जो स्पेक्ट्रम है वो ऑक्शन के बेसिस पर अलोकेट नहीं करती, वो डिस्क्रिशन के बेस पे होता है, और उनका फोकस होता है कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उससे रेवेन्यू आए. यानी कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके प्रेमिस ही दिए हुए हैं, पर इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि South Korea or Japan, they are the best telecom services and neither country allocates spectrum on the basis of auction. यानी कि जो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन का तरीका है, दिस इज नॉट गुड, कि वो अच्छा नहीं है, और ये साउथ कोरिया और जापान उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तभी तो वो बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज हैं. अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पर. पहला ऑप्शन सबसे घटिया ऑप्शन, देखते ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए. गीज आर नॉट कंज्यूम्ड एज फूड इन जापानीज और इन साउथ कोरियन कल्चर. गीज की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा ऑप्शन, राइट. देन फिर आता है ऑप्शन बी. Auctioning telecom spectrum would generate a great deal of revenue for the Japanese and for Japan and South Korea. अब मुझे बताओ, पहली वाली लाइन में दिया हुआ है कि दोनों में से कोई भी कंट्री ऑक्शन के बेसिस पे स्पेक्ट्रम अलोकेट नहीं करती और दोनों ही बेस्ट है. यानी क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इससे कि ऑक्शन जो है वो अच्छा नहीं होता. अगर कोई कंट्री ऑक्शन को फॉलो करेगी तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा. अब इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे जो स्टेटमेंट को, जो पैसेज में दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. सी और डी को देखते हैं. सी कह रहा है गवर्नमेंट्स दैट विश टू प्रोवाइड गुड टेलीकॉम सर्विसेज शुड नॉट ऑक्शन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम. यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं जो अच्छी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, उन्हें अपना टेलीकॉम सर्विसेज जो है, स्पेक्ट्रम जो है, उसको ऑक्शन नहीं करना चाहिए. ये पैसेज के साथ अलाइन कर रहा है कि साउथ कोरिया जापान बेस्ट है और वो ऑक्शन नहीं करते. तो अगर जिनको अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको ऑक्शन नहीं करना चाहिए. डी इसका तो पूरा ऑपोजिट है कि जो गवर्नमेंट्स दैट विश टू प्रोवाइड गुड टेलीकॉम सर्विसेज शुड ऑक्शन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, राइट. Okay, अब ये देखो कि, हाँ बोलो. but isn't this an assumption? ये सी assumption हुआ ना फिर. हाँ, But इसमें तो premise पूछ रहा है. नहीं नहीं, प्रेमाइस नहीं, इसमें पूछा है व्हाट इज ट्रू एज पर द पैसेज. Oh, प्रेमाइस इसमें लिखा नहीं है, आप पहले क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू no, एज पर द पैसेज. I assume that it's premise because true पूछा है and हाँ premise is हाँ the fact. हाँ, देखो यही तो मोस्टली बच्चों की गलती होती है, क्वेश्चन अच्छे से हम लोग रीड नहीं करते. कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि लाइक मैंने ऊपर ऊपर से एक क्वेश्चन देख लिया क्योंकि टाइम नहीं है, या मुझे लगता है कि यार ये तो आता है, और वहीं पे फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो क्वेश्चन को पूरा रीड करो अच्छे से. Okay, okay, okay. अब आ गया आपको समझ? Yes, yes, thank you.
Okay. सो फॉर पर्सनल मेंटरशिप और किसी का डाउट तो नहीं है, तो 1 मिनट जिनका भी डाउट हो बस 1 मिनट वेट कर लो। हम लोग एक बार पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बता देते। भैया मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे पर्सनल मेंट उसको शेयर कर सकते हो क्या आप स्क्रीन पे? Wait. I'm sharing. ओके, तो अभी आपको शेयर किया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि पर्सनल मेंटरशिप हमने लॉन्च किया है, जिनमें आपको ओम सर एंड रिया मैम और भी एनएलयू के स्टूडेंट्स की एक टीम है। उस टीम आपको पर्सनली मंथली बेसिस पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगी, जिनमें हम काफ़ी सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे और उसकी कॉस्ट वन ऑफ द लोएस्ट होगी, क्योंकि ये पर्सनल मेंटरशिप है, ये कोई प्रॉपर कोर्स नहीं होने वाली है। जैसा कि कोचिंग कोर्स तो हम फ्री में करवा ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल मेंटरशिप थोड़ी डिफरेंट होती है कोर्स से। इसमें आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगी, इसमें आप पे डायरेक्टली फोकस किया जाएगा और आपको क्या वीक है आपका, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम उस पर स्पेशली वर्क करेंगे। तभी सून आपको इसकी डिटेल्स हम दिखाते हैं। Is my screen visible now? नो। I'm sharing. Wait. आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, मैं शेयर तो कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। हाँ, ओके ओके, आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारी पर्सनल मेंटरशिप है। इसमें टोटल आपको 3 टाइप्स है, स्टार्टर है, प्रीमियम एंड अल्ट्रा है। तो जो स्टार्टर है, जो कि सबसे लोएस्ट है 499 का, इसमें भी आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप होती है, वो तीनों में मिलेगी। लेकिन अल्ट्रा में जाके आपको स्पेसिफिक मटेरियल्स मिलेगा, जो कि हम आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन कराएंगे मटेरियल, जो कि आपके लिए ही होगा कि आपको किस टाइप का मटेरियल स्टडी करना चाहिए। आपको इसमें एडिटोरियल्स एनालिसिस करना सिखाया जाएगा। हम डेली एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको हर हफ्ते 2 क्लासेस होंगी। जैसे उसमें लिखा हुआ है स्टार्टर को 2 बार मंथ में। ये जो क्लास होंगी इसमें आपको खुद सिखा दिया जाएगा कि आप खुद ही कैसे एडिटोरियल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपको मॉक एनालिसिस करना सिखाया जाएगा। ये जो क्लासेस होंगी इसमें करवाया ही नहीं जाएगा, करवाया भी जाएगा, प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप हमेशा टीचर पे डिपेंड क्यों रहोगे। तो हम आपको खुद ही बना देंगे वैसा कि आप खुद ही एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाओ। आपको मंथली वाइज सीए टॉपिक लिस्ट मिले, जो कि प्रीमियम एंड अल्ट्रा में मिलता है। ओके, सो जो आपका क्वेश्चन को जल्दी हम जो हाउ मेनी वेट ईयर। आई आंसर, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मैं पक्का आंसर कर दूंगी, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। आंसर कर दूंगी। और ये जो लाइव सेशन होगा फिर सेक्शन वाइज होगा, जैसे किसी को लॉजिकल में प्रॉब्लम है, लीगल में है, तो उसके लिए स्पेशल मेंटर्स को बुलाया जाएगा जिनका लीगल अच्छा है। तो फिर उनके लिए आपको ऐसे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, उस टाइप से होगा। फिर पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलेगा, सेक्शन वाइज गाइडेंस है एंड लाइफ सपोर्ट है। तो आप ये देख लो, अगर बाकी कोई भी इशू है तो आप, मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप डीएम कर देना व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और ऑफ़र भी है अभी, जो कि क्लैट वेव्स के हो, उनके लिए स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है। तो आप जल्दी से करो, अभी 2 या 3 सीट्स लास्ट की बची हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चे इनरोल नहीं करेंगे इसमें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 2 या 3 सीट्स और बची हुई हैं, तो जिनको भी लेना है वो इस नंबर पे जल्दी से डीएम कर देंगे, आज ही आज। तो हाँ, अभी आप बता दो। डाउट मैं ले लेती हूँ। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैम, प्रेमिस फॉल्स भी हो सकता है क्या? हाँ, डिपेंड करता है, प्रेमिस फॉल्स हो सकता है, पर अगर पैसेज में दिया हुआ है हमें ट्रू मान के चलना है। अब रियल में पता नहीं है कि सच सही है या नहीं है, लेकिन अगर पैसेज में जो चीज़ दी हुई है हमें वो ट्रू मान के चलनी है। अगर पैसेज में दिया दिया हुआ है कि यू नो एलिफेंट्स आर बर्ड्स, तो वो ट्रू मान के चलना है, चाहे वो रियल में सच हो ना हो, लेकिन पैसेज में दिया हुआ है तो करेक्ट मान के चलना है। Then Jojo asked how many years you study for CLAT. So I have started preparing for CLAT when I was in 11th standard. So it was kind of 2 years preparation, you can say. बाकी पर्सनल मेंटरशिप के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है?
मैम जो आपने क्वेश्चन कराया था परफ्यूम्स वाला, उसमें सारा प्रेमिस था, कंक्लूजन वाज मिसिंग टू अस। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्लैट में? हाँ, आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि देखो आर्ग्यूमेंट कंप्लीट जब होता है जब प्रेमिस और कंक्लूजन दोनों होते हैं। उसमें खाली प्रेमिस प्रेमिस था, तो वो इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट था। लेकिन आप ये देखो क्लैट में आपका जो पैसेज आएगा वो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको छोटे क्वेश्चंस कराए थे प्रैक्टिस के लिए। क्लैट में पूरा पैसेज आएगा 200 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, तो उसमें सारी चीज़ गिवन होगी। बाकी जो क्लैट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे भी हम देखेंगे। अभी पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर देन वी मूव टू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। उसकी भी फिर आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। माई स्कोर इन क्लैट एग्जाम वॉज आई गेस 80, नहीं नहीं, मेरी रैंक 86 थी, मेरी स्कोर शायद 90, हाँ 96 था। 96। शुड आई डू प्राइवेट स्कूलिंग फॉर माई क्लैट प्रिपरेशन? कर सकते हो, मतलब स्कूल के साथ हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने में, पर वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं तो ये कि मेरा स्कूल तो था, मैं जाती थी, पर रेगुलर भी नहीं थी, कभी कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। तो इफ़ यू कैन, हाँ कर सकते हो प्राइवेट स्कूलिंग। द पर्सनल मेंटरशिप विल स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक दो सीट्स बच रही हैं, तो पहले वो फिल हो जाए। प्रॉबेबली हम लोग सोच रहे हैं कि इसी वीक से स्टार्ट कर दें, एक दो दिन बाद, डिपेंड करता है वो। जहाँ तक है इस वीक से स्टार्ट हो जाएगी। और दैट आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेंटरशिप पे, ये पूरी सब कुछ करवाया जाएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप नेक्स्ट लीव कर सकते हो। और ये हाँ, क्योंकि और ये चीज़ मंथली है, तो फिर ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कोचिंग में क्या होता है, आपसे 2 लाख तभी ले लेते हैं वो। लेकिन इसमें क्या है, आपको अच्छा लग रहा है 1 महीने तक पढ़ो, नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं, आप कहीं और से पढ़ लो। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आपको बांध के नहीं रख देंगे जैसे बाकी कोचिंग्स 2 लाख लेके रख लेते हैं, फिर आपको वहीं पढ़ना होता है, फिर चाहे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें ये ऑप्शन भी है। और बाकी काफ़ी अच्छा है मेंटरशिप, मैं खुद पढ़ाऊंगी, तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो फिर यू कैन गो फॉर पर्सनल मेंटरशिप, it will be beneficial for you. How many hours you spent in preparation of CLAT? अब ऐसे तो याद नहीं, पर एवरेज देखे तो 5 to 6 hours, 5 to 6 hours डेली। डेली होना मैटर करता है। okay then Matthew, you should stop the recording now, I guess.